Good evening students. Today we are going to start Economics Division Chapter 2 People as Resources. आज मैं आप लोगों को Division Chapter 2 Economics का Chapter 2 है People as Resources के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स रिवीजन कराने जा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको भी रिवीजन कराया था चैप्टर का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। So today we will discuss these question answers. First question: what is role of health in human capital formation? Second: what is the difference between economics activities and non-economics activities? Third: why are women employed in low-paid work? Fourth: how will you explain the term unemployment? Fifth: why is educated unemployed a peculiar problem of India? Sixth: in which field do you think India can build the maximum employment opportunities? So today we will discuss first question. First question क्या है? What is the role of health in human capital formation? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है? हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, इफ एन इंडिविजुअल इज हेल्दी ही और शी may have better immunity to fight illness. Second, being healthy will also increase the overall outcome of an individual. Third answer है, the health of an individual is directly proportional to work he does. Thus, better healthy will increase efficiency. The above mentioned points prove that if better health care measures are taken up, an individual in a country becomes more healthy, the human capital and productivity will also. Second question पर मैं आती हूँ, what is the difference between economics activities and non-economics activities? Economics activities क्या होती हैं और non-economics activities क्या होती हैं? The activities that add value to the national income are called economics activities. जिसमें कि नेशनल इनकम शामिल होती है, ऐड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ बोलते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये टू टाइप्स में डिवाइड होती है, फर्स्ट मार्केट एक्टिविटीज़ में और सेकंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में। मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व द एक्टिविटीज़ परफॉर्म फॉर PR, profit, and non-market activities include the production done for self-consumption. The activities that add to value to the national income are called non-economics activities. नो वैल्यू टू द नॉन-इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें नेशनल इनकम जो होती है वो ऐड नहीं होती है, जबकि इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में जो नेशनल इनकम होती है वो ऐड होती है। द डोमेस्टिक core is an example of non-economics activities. Third question है, why are women employed in low-paid work? वुमन जो एम्प्लॉयड होती हैं, जो लेडीज़ जो काम करती हैं, वो कम मजदूरी में काम क्यों करती हैं? The wage distribution among men and women has been a major concern for society. हमारी जो सोसाइटी है इसमें मैन और वुमेन की जो वेजेस हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। वही काम मैन करता है तो उसको ज़्यादा पैसा मिलता है, जबकि वुमेन करती है तो उसको कम मनी मिलती है। वुमेन आर मोस्टली पेड लेस देन women, men, and one major reason for this is the marriage education. Qualification of women: they are employed in sectors which do not provide them with proper maternity leaves, child care benefits, and other provisions are also responsible for managing the household work. Hence, they are paid less than men. Skill is another reason.
स्किल भी एक दूसरा रीजन है। वाई वेजेस फॉर वोमेन आर लेस देन मैन, मैन आर कंसिडर्ड मोर स्किलफुल इन कंपेरिज टू वोमेन डिस्पाइट इक्वल फिजिकल वर्क ड्यू टू देयर रीजन वोमेन आर एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। हम अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे, बेरोजगारी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ए सिचुएशन इन विच स्किल्ड एंड एबल्ड पीपल डू नॉट गेट गेनफुल वर्क। एक ऐसी सिचुएशन आती है जबकि कोई वर्क नहीं मिलता है उसको, विच स्किल एंड एबल्ड पीपल, मतलब उसके पास स्किल भी है और वो एबल भी है, डू नॉट गेट गेनफुल वर्क, मगर उसको गेनफुल वर्क नहीं मिलता, एट अ डिसेंट वेजेस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो रूरल एंड अर्बन एरियाज बोथ है अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल और अर्बन दोनों में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। इन द केस ऑफ द रूरल पॉपुलेशन देयर इज अ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम रूरल पॉपुलेशन को देखें तो वहाँ पर क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एंड इन अर्बन एरियाज देयर इज अ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यदि हम रूरल एरियाज में देखें तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। रूरल एरिया में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, क्योंकि रूरल एरियाज में फार्मर्स सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे, और फार्मर्स क्या होता है, 6 मंथ उनको काम मिलता है और 6 मंथ उनको काम नहीं मिलता है। जबकि अर्बन एरियाज जो शहरों में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होता है, पढ़े लिखे लोग जो है कम लो पेड पर काम नहीं करना चाहते हैं, कम मजदूरी पर वर्क नहीं करना चाहते हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई किया है उस हिसाब से उनको काम नहीं मिल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ए पेकुलर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ जो एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड है वो एक बहुत बड़ी इंडिया की प्रॉब्लम है, मतलब पढ़े लिखे लोगों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिलता, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमेना इन इंडिया। यूथ विद मैट्रिकुलेशन, हमारे यहाँ जो यंग एज है वो मैट्रिकुलेशन में की रहती है, ग्रेजुएशन में किया रहता है, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी है, आर अनएबल टू गेट जॉब्स इन इंडिया। This is because the education system in India levies anyone above the age of 80 year eligible to work. This leaves the youth unskilled and ultimately unemployment। 18 years के बाद ही वो काम कर सकता है। यदि हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 18 वर्ष से पहले उसको कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता। It is important that individual does not only have a degree। हमारे लिए सिर्फ डिग्री एक मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट मस्ट आल्सो बी स्किल एनफ टू गेट अ जॉब। एक जॉब के लिए सिर्फ डिग्री लेना ही कंपलसरी नहीं है, बट उसके बाद स्किल होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास स्किल है तो आप कहीं भी काम आपको मिल सकता है। तो मस्ट स्किल एंड मस्ट डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which field do you think India can build the maximum employment opportunities? मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में किस तरफ है, कहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन विच द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स एडवाइज। हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स हैं वो 3 हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड है सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है टेरिशरी सेक्टर। 3 सेक्टर हमारे यहाँ होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, जहाँ पे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ जो इंडिया का लार्जेस्ट पार्ट है वो किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और फॉर देयर लिवलीहुड। यट देयर इज अ मैसिव स्कोप ऑफ बिजनेस अनएम्प्लॉयमेंट द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। फर्स्ट सेक्टर क्या है हमारा, एग्रीकल्चर का सेक्टर है। सेकेंड सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ए सेकेंडरी एक्टिविटीज इज द वन वेयर इज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी गिवन
number of industries. Now let us start the next question. Next question क्या है आपका? What is the difference between disgust, unemployed, and seasonal unemployment? Unemployment. Next question. What is the role of education, human capital formation? Education in human capital formation. Next question. How do you understand by people as resources? Now let us start the next question. Next question क्या है? What is the difference between disgust, unemployment and seasonal unemployment? Disgust, unemployment and seasonal unemployment में क्या difference होता है? Rural areas have cases of both seasonal and disgust unemployment. Rural areas में ये दोनों unemployment देखे जाते हैं. Seasonal unemployment is when a person is unable to find job ड्यूरिंग अ फ्यू मंथ्स ऑफ द ईयर. जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है इसमें क्या होता है, एक साल के कुछ महीने के लिए जो होता है जॉब मतलब मिलता है. दिस मोस्टली हैपन्स फॉर फार्मर्स हु आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. इसमें क्या होते हैं, मोस्टली फार्मर्स आते हैं और क्या होते हैं वो एक साल में उनको कुछ महीने ही काम मिलता है. When no crops are grown, disgust unemployment. यदि कोई क्रॉप्स नहीं होती है तो उसको क्या होगा, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है. ये डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड व्हेन द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑन एग्रीकल्चर लैंड इज हायर देन द नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली रिक्वायर्ड टू वर्क. मतलब वहाँ इतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती है काम की, मगर उससे ज़्यादा लोग जो है उस मतलब फील्ड पर काम कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत एक ही व्यक्ति की होती है. दिस इज कंसीडर एज एग्जाम्पल आर डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है मगर ऐसा देख के लगता है कि वहाँ इतने लोग वर्क कर रहे हैं. इफ़ अ पीस ऑफ लैंड रिक्वायर्स ओनली देयर पीपल टू वर्क ऑन इट बट रेदर 5 आर वर्किंग ऑन इट, द 2 एक्स्ट्रा पीपल.
मतलब 5 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जबकि 5 लोगों का काम की जरूरत नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ या 2 या 3 लोगों में काम हो सकता है। तो मतलब 2 extra people are an example of discuss unemployment। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अभी तक जितने क्वेश्चंस आपको समझाए आपको समझ में आ गए होंगे उनके आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ड्यूरेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ ड्यूरेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है? एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल है फॉर द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, एन एजुकेटेड human can be considered an asset for the economic and not a liability. Second, education can help an individual make better use of economic opportunities. It helps in enhancing the national income, cultural richness, and increase the efficiency of the government. Third, it enhances individual productivity in terms of quality and quantity. Fourth, because being educated can help the economic status of an individual, it also develops the conscience towards society. Fifth, an educated person is also aware about health and hygiene, and it will ultimately result in better health of the people of a country. तो इस तरह से मैंने आपको व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बताया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्सेज। पीपल एज रिसोर्सेज के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? पीपल एज रिसोर्सेज, पीपल भी एक रिसोर्स है, हम सब क्या है? एक रिसोर्सेज है। पीपल एज रिसोर्सेज इज अ टर्म दैट मीन्स हाउ द पॉपुलेशन कैन बी असेस्ड एंड नॉट अ लायबिलिटी। हम लोग क्या है? एक असेस्ड है, जबकि एक लायबिलिटी नहीं है, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है हम मतलब अपने इंडिया के लिए। इट वे आर रिफरिंग टू वर्किंग क्लास ऑफ सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड abilities. The population becomes human capital when an investment is done in the form of education and training. Education and health also help human beings to be an asset to the economy. Thus, people as resources refer to the working of population that result in the development of society. तो मैं अब यहीं पर आपका ये जो पेपर है रिसोर्सेज वाले चैप्टर्स की जो मैंने आंसर्स का रिवीजन कराया, मैं इसको यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से क्वेश्चन के आंसर्स लर्न करिएगा, ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और अच्छे से वीडियो को वॉच करके अच्छे से क्वेश्चन के आंसर्स लर्न करिए, याद करिए और एग्ज़ाम की तैयारी